नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। मिडल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ईरान पर इजरायल और अमेरिकी हमले लगातार जारी है। ईरान भी खाड़ी देशों पर अग्रेसिव अंदाज में रिटालिएट कर रहा है। इजरायल अमेरिका ने मिलकर ईरान पर कई हमले किए थे, जिसके बाद ईरान ने एक के बाद एक दुबई, आबू धाबी, कुवैत, कतर जैसे मिडिल ईस्ट शहरों में तबाही मचा दी। अब पूरे मिडिल ईस्ट में जंग फैल चुकी है। ना ईरान मानने को तैयार है, ना अमेरिका इजरायल। अब तक इस जंग में कुल 10 देश शामिल हो चुके हैं और कई देशों के तीखे बयान आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या यह जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक है? नहीं, क्योंकि इस युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अभी से नजर आने लगा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसकी तपिश भारत के बाजारों तक महसूस की जा रही है और तो और इसकी लपटें आम लोगों की जेब तक पहुंच सकती है। और इसी पर देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट, तेल का तूफान, बाजार परेशान। मिडिल ईस्ट में मिसाइलों की गूंज। असर सीधा भारत की जेब पर। खाड़ी में बारूद, बाजार में भूचाल। तेल महंगा, महंगाई भारी, निवेशक सहमे। कूटनीति काम करेगी या बारूद बोलेगा? सत्ता और दबदबे की रेस। दुनिया फिर बारूद के ढेर पर खड़ी है। एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ ईरान, और पर्दे के पीछे निर्णायक ताकत संयुक्त राज्य अमेरिका। मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन आसमान चीर रहे हैं।
think it was very clear from day one, and they have already told the United States and Israel, you've started this war. Yes, you started, but we will end this war in our own terms. So therefore, there is no question of negotiation. And besides, for what you want to negotiate? If the negotiation was already on the nuclear issues with the American in Geneva, with the mediations of Oman, and Omani foreign minister said it openly that yes, there is lots of progress, and suddenly you go and attack and you track the voice call like you and the Israeli good in assassinating leaders, and you go and attack the leaders who were already negotiating a deal with you. What does it mean? For what you want me to sit down and negotiate? You're killing a civilian, you targeted a school, you killed a supreme leader who was handicapped, who was 86 years of age, and then you killed more than 40 top leaders, and you're talking of nuclear, you're talking of regime change, you're talking of destroying the total infrastructure of Iran, and still you want us to sit down across the table and negotiate with you? I mean, no human being on this earth will go and negotiate with the killers. खाड़ी में जहाजों की निगरानी बढ़ चुकी है, तेल बाजारों में घबराहट है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट की है? नहीं, इसकी गूंज भारत तक सुनाई दे रही है। इसकी तपिश मुंबई के बाजारों तक महसूस हो रही है, और तो और इसकी लपटें आम आदमी की जेब तक पहुंच सकती है। जंग की असली वजह सिर्फ सीमा विवाद नहीं है, ये सिर्फ बदले की कार्रवाई नहीं है, ये है प्रभाव की लड़ाई। मिडिल ईस्ट पर किसका दबदबा रहेगा? Their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead, and it's an amazing thing that's taking place before your eyes. Because for 47 years we were pushed around, and we shouldn't have been. And I think I can say, and you see it as well as I do, you see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking their neighbors. They're attacking their, in some cases, allies, or not so long ago allies. And, you know, it's really a nation that was out of control, and they would have used it on us if we let them, if we waited any longer. A big factor was Soleimani, the killing of Soleimani in my first term. And maybe the biggest factor was the rebuilding of the military in my first term. And then the B-2s hit the, and I use the word obliterate because it was a complete obliteration of their nuclear potential. And that set them back very, very seriously. ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इजराइल की सुरक्षा रणनीति, अमेरिका की वैश्विक ताकत की राजनीति, इन सब ने मिलकर बनाया है विस्फोटक समीकरण। और हर बयान के पीछे चेतावनी, हर चेतावनी के पीछे तैयारी, और हर तैयारी के पीछे संभावित युद्ध। क्योंकि आज मिडिल ईस्ट में एक नया जटिल युद्ध उभर रहा है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य अभियानों के जवाब में ईरान की व्यापक सेना अलर्ट है। इस संघर्ष ने वैश्विक राजनीति, आर्थिक ढांचे और ऊर्जा बाजार को झकझोर दिया है, और तो और इसका असर भारत पर भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। असर सीधा भारत की जेब पर। आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन से लेकर वेस्ट एशिया तक दुनिया के कई हिस्से उसमें संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है। ग्लोबल वॉर सिनेरियो,
अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ हालिया हमलों ने क्षेत्रीय तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से पलटवार किया है, जिससे युद्ध की आग और तेज हुई है। मिडिल ईस्ट के ये संघर्ष अब केवल स्थानीय नहीं रहे, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार मार्गों को प्रभावित कर रहे हैं। We don't want war, but we are ready for war. And you know that we entered in the negotiation table. In spite of, we believe and we know and we aware about their intention. But you know that they set the time. But before that, attack. And we are subjected the criminal military aggression. And we announce that we respond. We strong respond. This is our stand. Unfortunately, the region faced to so many problems. And the Zionist regime wants to disturb and destroy all the properties in our region. भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर असर। भारत अपनी कुल ऊर्जा का लगभग 40 से 50% हिस्सा मिडिल ईस्ट से कच्चा तेल आयात करता है, जिनका एक बड़ा हिस्सा हार्मुज जलमड्रू मध्य के रास्ते आता है। युद्ध के कारण तेल की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं और अगर ये संघर्ष लंबा चलता है तो तेल 90 से $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। इससे भारत में महंगाई और ऊर्जा आयात बिल में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप घरेलू तेल एवं गैस कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी दबाव पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और बाजार। भारत के शेयर बाजारों में गिरावट आई है और निफ्टी प्रमुख स्तरों से नीचे फिसल रहा है। इसका कारण वैश्विक अस्थिरता और तेल की बढ़ती कीमतें हैं। मिडिल ईस्ट भारत के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा है। तेल के अलावा निर्यात एवं आयात संवेदनशील जंक्शन है। भारत के प्रमुख बासमती चावल निर्यात पर भी असर दिख रहा है, जिसमें भारी मात्रा में माल पोर्टों और ट्रांजिट में फंसा हुआ है, जिससे व्यापार में अस्थिरता बढ़ी है। समुद्री मार्गों पर तनाव के कारण शिपिंग रूट लंबे और महंगे हो गए हैं, जिससे लागत में बढ़ोतरी और व्यापार में देरी हो रही है। यात्रा और विमानन प्रभावित। भारत से यूरोप और मिडिल ईस्ट के लिए फ्लाइट मार्गों में बदलाव के कारण हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी हुई है और कई उड़ानें प्रभावित हैं। आम जीवन पर असर। तेल और खाद्य तेल जैसे आयात वस्तुओं की कीमतें बढ़ने की चेतावनी है, जिसका असर आम उपभोक्ता तक पहुंचेगा। और तो और विदेशी मुद्रा के बड़े हिस्से में तेल और व्यापारिक लेन देन की लागत बढ़ने से मुद्रास्फीति में दबाव बढ़ सकता है। मानव और सामाजिक प्रभाव। भारत में मध्य पूर्व के लाखों प्रवासी कामगार हैं, जिनकी मजदूरी और विदेश से भेजी जाने वाली रेमिटेंस पर असर हो सकता है अगर क्षेत्रीय परिस्थितियां बिगड़ती हैं। भारत ने पहले भी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष संचालन किए हैं, जैसे पिछले वर्ष ईरान से नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया था। मुझे लगता है कि भारत सरकार को कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हमारा एक भी भारत का नागरिक
विदेश में फंसा है, उस खाड़ी क्षेत्र में फंसा है, तो उसको सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। बाकी अन्य देश बहुत प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों को, क्योंकि हमारे संबंध सबके साथ हैं, हमारी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, तो हमारे जो नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं, खास करके राजस्थान से बहुत सारे लोग अलग अलग देशों में हैं, उनके मैसेजेस भी आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि विदेश मंत्रालय और प्रदेश की सरकार जल्द काम करें, क्योंकि हमारे नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी मुल्कों के लोग उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं, उनके लिए चार्टर्स कर रहे हैं, फ्लाइट भिजवा रहे हैं। हम लोगों को तुरंत जितना भी हो सके साधन संसाधन लगाकर उनको सुरक्षित वापस लाना चाहिए। राजनयिक और सुरक्षा चुनौतियां। भारत ने स्पष्ट किया है कि वो सबसे संवाद और कूटनीति के रास्तों से समाधान का समर्थन करता है और अपने नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सुरक्षा समीकरण भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भारत को क्षेत्र में अपने ऊर्जा हितों, वैश्विक राजनीतिक संतुलन और सुरक्षा साझेदारियों को संतुलित करना है। ये संघर्ष अब केवल मिडिल ईस्ट या दो देशों के बीच युद्ध नहीं रहा, ये वैश्विक ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की एक परतदार समस्या बन चुका है। भारत जैसे बड़े उभरते बाजारों के लिए ये समस्या दूर नहीं है। ये रोजमर्रा के आर्थिक निर्णयों, जीवन की लागत और वैश्विक कूटनीति के समीकरण को प्रभावित करता है। अमेरिका के हाई टैरिफ और राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव के बाद भले ही भारत ने रूस से कच्चे तेल के आयात में कुछ कमी की हो, लेकिन मौजूदा पश्चिम एशिया तनाव और सप्लाई अनिश्चितता के बीच भारत अब वैकल्पिक रणनीति पर भी काम कर रहा है। फरवरी में भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता रूस रहा, जबकि दूसरे स्थान पर सऊदी। पश्चिम एशियाई देशों से भारत का आयात लगभग 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है, जो जनवरी में लगभग 7.7 लाख बैरल प्रतिदिन का था। तेल का तूफान। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और उसकी ऊर्जा की धड़कन गुजरती है हॉर्मुज जल डमरू मध्य से। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो समझिए भारत की अर्थव्यवस्था की सांसें तेज हो जाएंगी, क्योंकि तेल की कीमत $10 बढ़ी तो पेट्रोल डीजल महंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब्जी महंगी, दूध महंगा। यानी जंग वहाँ और असर यहाँ। हर भारतीय परिवार के बजट पर दबाव, हर उद्योग की लागत में उछाल और तो और हर राज्य सरकार के वित्तीय संतुलन पर खतरा। शेयर बाजार की घबराहट जैसे ही जंग की खबर तेज होती है, बाजार कांपते हैं, सेंसेक्स गिरता है, निफ्टी 50 फिसलता है, विदेशी निवेशक जोखिम कम करते हैं, डॉलर मजबूत होता है, रुपया दबाव में आता है। कमजोर रुपया मतलब महंगा आयात मतलब महंगाई। स्टार्टअप से लेकर बड़े उद्योगों तक सबकी रणनीति बदल जाती है। समुद्री संकट। खाड़ी और लाल सागर का इलाका बन चुका है हाई रिस्क जोन। लाल सागर में तनाव बढ़ा तो शिपिंग कंपनियों ने रास्ता बदला। लंबा रास्ता, ज्यादा ईंधन, ज्यादा बीमा, ज्यादा लागत। भारत यूरोप व्यापार प्रभावित, डिलीवरी लेट, कंटेनर महंगे और ये सब जुड़ता है आपके और हमारे रोजमर्रा के खर्चे से। भारतीय प्रवासी साइलेंट फैक्टर। मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय काम करते हैं। खाड़ी देशों में बड़ी आबादी जुड़ी है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल से हर साल अरबों डॉलर की रेमिटेंस भारत आती है। अगर युद्ध फैलता है तो नौकरियां खतरे में, काम रुक सकता है, वापसी का संकट खड़ा हो सकता है। रेमिटेंस कम हुई
तो विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ेगा। भारत की कूटनीतिक चाल। भारत संतुलन की राजनीति करता है। रक्षा सहयोग इजराइल के साथ, रणनीतिक साझेदारी अमेरिका के साथ, ऊर्जा और ऐतिहासिक संबंध ईरान के साथ, यानी एक रस्सी पर संतुलन। समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना अलर्ट है। मौद्रिक स्थिरता के लिए भारतीय रिजर्व बैंक चौकन्ना है। भारत की कोशिश साफ है, जंग से दूर लेकिन हितों की रक्षा के साथ। wants to attack the region after Iran will come to another countries. It has been known that according to investigations, in the near future they will be shift of power to some other countries. And in the near future, the most powerful countries in the world will be India, China, Russia, and America as well. So America doesn't want to have any partner, doesn't want to be India, the powerful country, doesn't want China to be powerful country. Because of that, they create a lot of wars to stop this ongoing in the future. And we are ready, we are ready to stop the war. We are ready for negotiating, but the negotiating should be with the dignity, not dictating something against Iran. We are defending ourselves. We are looking for our right and nothing else. भारत ईरान को क्या बेचता है? ईरान को भारत के मुख्य एक्सपोर्ट में बासमती चावल, चाय, चीनी, ताजे फल और दवाएं, फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। ईरान से भारत क्या खरीदता है? वहीं ईरान से भारत को होने वाले मुख्य एक्सपोर्ट में सेब, पिस्ता, खजूर और कीवी शामिल हैं। हालांकि मौजूदा तनाव इजराइल के साथ व्यापार पर असर डाल सकते हैं। इसके साथ भारत का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। इजराइल के साथ भारत का व्यापार पिछले 10 सालों में इजराइल को भारत का एक्सपोर्ट 21% बढ़ा है। इसकी मुख्य वजह डिफेंस और हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट शिपमेंट में बढ़ोतरी है। इजराइल से क्या खरीदता है भारत? भारत का इजराइल से हथियारों और गोला बारूद का इंपोर्ट लगभग 100 गुना बढ़ गया है। ये वित्त वर्ष 2012-13 में लगभग $10 लाख था। तब से ये बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में $10.4 करोड़ हो गया है। एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट और उनसे जुड़े पार्ट्स का इंपोर्ट भी तेजी से बढ़ा है। इस दौरान $3.18 करोड़ से बढ़कर $19.3 करोड़ हो गया है। ये कुल मिलाकर व्यापार की मात्रा स्थिर रहने के बावजूद गहरे स्ट्रेटेजिक सहयोग का संकेत देता है। भारत पर कैसे पड़ेगा असर? दो तरफा संबंधों के अलावा बड़ी क्षेत्रीय अस्थिरता ग्लोबल शिपिंग के लिए जोखिम पैदा करती है। एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले एक जरूरी रास्ते रेड सी कॉरिडोर में रुकावट से माल ढुलाई और इंश्योरेंस की लागत बढ़ने की उम्मीद है। ज्यादा लॉजिस्टिक्स लागत पश्चिमी बाजारों में भारत के एक्सपोर्ट को कम कर सकती है, इंपोर्ट बिल बढ़ा सकती है। ये बात खास तौर से एनर्जी और इंटरमीडिएट सामानों पर लागू होता है। एनालिस्ट के मुताबिक हमले के बाद भारत की तेल सप्लाई में रुकावट का खतरा फिर से बढ़ गया है। इससे होर्मुज स्ट्रेट में रुकावट आ सकती है, जो भारत के कच्चे तेल के इंपोर्ट के लिए अहम रास्ता है। उनका कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट पर रोक लगने से भारत के महीने के कुल इंपोर्ट का 50% तक प्रभावित होगा। तो जहां एक तरफ महायुद्ध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार भी हर एक मोर्चे पर पैनी नजर बनाए हुई है। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।